So now constructor we have done. So constructor के साथ we had destructor also. So we will complete destructor part. The destructor is used for what purpose? It is used to destroy the object that which we have created by constructor. So destructor क्या है? It is a special member function just like constructor, but it is used to destroy the object, because when you have created the object you have given some memory by using new memory management operator. But once you have finished with your work and when you are out from that, then you need to destroy the object so that you can use that allocated memory for other purpose. Understood? So डिस्ट्रॉय करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर लिखते हैं, बट अगर आपने डिस्ट्रक्टर नहीं भी लिखा अपने प्रोग्राम में, then also compiler will automatically call delete operator, or it will call destructor which will destroy the object, so that the memory which is occupied by the objects we can use for other purpose. So after the use of an object, memory should be deallocated, which is holding the object. For this reason, the object should be destroyed. So that's why what we were discussing, same thing now, that we need to deallocate the memory so that we can use for other purpose. The destructor is automatically invoked when object is not used to clean up the storage that is no longer accessible. So why we need destructor? So that we can destroy the object and the memory which is used by the object we can use for other purpose. So now what is the syntax of destructor? Syntax is same like constructor. The function, the name of destructor and the name of class is same. बट फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में? ये सिंबल का, ये जो हम टाइडल साइन यूज करते हैं ना, वेव वाला साइड, इफ यू कैन से एस्केप की जो होती है एकदम टॉप कॉर्नर पे राइट में, उसके नीचे वाले की पे ये रहती है, इसको हम टाइडल साइन भी बोलते हैं. दैट साइन यू हैव टू यूज बिफोर द क्लास नेम. तो दिस इज शोइंग दैट दिस इज अ डिस्ट्रक्टर. Okay, destructor is also it is not returning any value, so there is no return type for this destructor also. So there is no void int before that class name, same like constructor. But we cannot overload destructor. The job of the destructor to destroy the object. तो जब ऑब्जेक्ट को सिर्फ डिस्ट्रॉय का काम करता है तो हमें पैरामीटर्स पास करने की क्या ज़रूरत है? तो पैरामीटराइज नहीं होते डिस्ट्रक्टर, और उसके बाद हम इसको, अगर वो पैरामीटराइज नहीं होंगे तो हम उसको ओवरलोड भी नहीं कर सकते. तो इसीलिए डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड ऑल्सो. और सेम लाइक कंस्ट्रक्टर वी कैन नॉट इनहेरिटेड फर्दर बाय बेस क्लास. तो ये सब फीचर्स डिस्ट्रक्टर में भी 3 मार्क्स में कई बार आता है क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्ट्रक्टर एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिंटैक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर. तो ये इस तरह से ये सिंटैक्स आप लिख सकते हो कि हाउ टू रिप्रेजेंट destructor. The class name and the name of destructor function is same. Okay, and but here you have to use this tidal sign to represent that this is destructor. And destructor cannot return any value, so it has no return time. It is never takes any argument. There is no parameters in this. So since no parameters cannot be passed, hence it cannot be parameter. It is always default to destructor, and it cannot have any default argument. जब argument ही नहीं है तो उसकी values भी initialize नहीं कर सकते. Destructor cannot be overloaded. We cannot overload it. Why? Because अगर parameter ही pass नहीं कर सकते तो हम differentiate कैसे करेंगे? And it cannot be inherited further. So this is 3 mark question. You have to write all these features and sentence. Now I'll show you one program where I have used constructor, destructor and normal member function. You can see here program for destructor. Now in this you can see I have taken one class whose name is test. Clear?
Now I have created first member function which is nothing but a constructor. तो constructor कैसे declare करते हैं? Name of the class should be same of constructor name and name of the class should be same. So here I'm not doing any processing. I'm just showing showing you the concept that how you have to use constructor and destructor. ये आपका बोर्ड क्वेश्चन है, जर्नल का प्रोग्राम है. दिस इज योर जर्नल प्रोग्राम. प्रोग्राम आप जर्नल में ये बोर्ड में आता है. ये 50 मार्क में सिर्फ एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए आता है. तो वो बहुत स्टूडेंट लकी रहता है जिसको ये प्रोग्राम आ जाता है. ठीक है, तो ये आप ट्राई करना, एग्जीक्यूट करना अपने टर्मिनल पे. तो here I have created one class whose name is test, one constructor जहाँ पे हम बता रहे हैं displaying the message that this object is born, कि एक object born हुआ है means initialize हुआ है. ठीक है. Second is normal member function which is displaying that object is alive. Okay, that object is existing. And one destructor which is used to destroy the object, that object died. And here I am using getch. See, you can try without getch also. Here I am using in main program getch. बट अगर आप यहाँ पे गेट सी एच नहीं लिखोगे डिस्ट्रक्टर में, देन यू विल नॉट एबल टू सी दिस मैसेज. डिस्ट्रक्टर का मैसेज या तो आपको यहाँ गेट सी एच से आएगा, एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग गेट सी एच देन you have to press F5 after execution. Again when you execute and when you press Alt F5, then you will able to see the message. So we have two ways to see the message of destructor. Either you put getch within destructor, then only what is going on in the destructor you can see. क्योंकि destructor is basically used to destroy the object, but if you are putting something as a message, then कैसे पता चलेगा destructor कॉल हुआ है? तो डिस्ट्रक्टर कॉल होने के लिए हमने एक मैसेज डाला, बट उस मैसेज को डिस्प्ले, क्योंकि डिस्ट्रक्टर इज नॉट शोइंग एनीथिंग, you cannot see the value. But if you want to see the value of destructor, then you have to put getch in that. Otherwise it will not display. It will display only with the help of getch. और अगर आपने यहाँ getch नहीं यूज़ किया तो आप क्या करोगे? यहाँ पर सिर्फ आपको यही दो मैसेज दिखेंगे when you execute. Then what you have to do, you have to use Alt plus F5. Simultaneously when you press after execution of this program, when you again execute second time and then when you press Alt F5, then only you will able to see this message from destructor. ठीक है, तो प्रोग्राम क्या है? We have used constructor to show that object is born. We have used display member function, normal member function to display that object is alive, and one destructor to show that it is done. क्लियर? अब आप मेन प्रोग्राम देखो. मेन प्रोग्राम आपको एकदम नेक्स्ट लाइन से ही लिखना है. सिंस आई डोंट हैव स्पेस आई एम राइटिंग हियर. सो हियर आई हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट टी. तो जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो दिस विल ऑटोमेटिकली इन्वॉक. क्लियर? ये तो खुद से आज ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर इन्वॉक्ड हो जाएगा, तो आई नीड नॉट टू एक्सेस थ्रू डॉट ऑपरेटर. दिस इज नॉर्मल मेंबर फंक्शन, तो मुझे इसको डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करना पड़ेगा, और डिस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं. एज व्हेन यू आर लीविंग और व्हेन यू हैव डन विद दिस प्रोग्राम, इट विल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट. तो इसीलिए जब आप पहली बार एग्जीक्यूट करोगे तो यू विल नॉट एबल टू सी द आउटपुट, क्योंकि डिस्ट्रॉय होने के बाद हमें पता नहीं चला. वंस यू एग्जीक्यूट अगेन एंड व्हेन यू press Alt F5, then you will see. Otherwise you can put getch, so you will be able to see the message which is there in destructor. ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर अगर आप नहीं भी लिखते, नॉर्मली बहुत सारे अभी जितने भी प्रोग्राम हमने क्लास वाले कंस्ट्रक्टर के साथ किए हैं, we are not writing destructor, it is automatically called by compiler.
अगर आपको कैसे लिखना है डिस्ट्रक्टर, तो दिस इज द फॉर्मेट और सिंटेक्स यू कैन यूज। तो दिस सिंपल प्रोग्राम यू कैन यूज फॉर बोथ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कई बार आता है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, तो दैट टाइम दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम टू राइट एज एन एग्जाम्पल इन योर बोर्ड एग्जाम। और इतना फेमिलियर ये प्रोग्राम है कि आप कंस्ट्रक्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, डिस्ट्रक्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज़ योर बोर्ड क्वेश्चन ऑल्सो टू शो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रक्टर, like how you have to use destructor in your program. क्लियर? ये क्लियर है कैसे डिस्ट्रक्टर हमने कॉल किया है? इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? So this is your constructor destructor part. So this one topic is over, constructor and destructor. Now I'll start with the next topic, that is operator overloading. So today it is not possible to complete, uh, but we'll try kitna introduction part at least we can do. So operator overloading, what do you mean by overloading? Now you are familiar with the word overloading. We have seen function overloading and we have seen now constructor overloading. ठीक है, अब हम करेंगे operator overloading. Operator means your normal mathematical operators like plus, minus, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के जो बेसिक ऑपरेशन है दैट यू कैन ओवरलोड इन योर क्लास। ओके, तो ओवरलोडिंग मीन्स, what do you mean by overloading? It is assigning different meanings to the operation depending on the context. जैसे अभी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, यू कैन सी एग्जाम्पल, आई एम ओवरलोडिंग प्लस ऑपरेटर। ठीक है, ये मेरा मैथमेटिकल ऑपरेटर है, यूज़ किया जाता है किस लिए? एडिशन। तो अगर आपका एडिशन में यू आर एडिंग टू नंबर्स, तो दैट टू नंबर्स कैन बी इंटीजर like this 2 and 3, so you are adding two numbers 2 and 3. These two numbers can be your decimal 2.5 and 3.8. Okay, and you can add two strings also like hello world, this is called concatenation. Clear? And these two, this plus operator you can use for addition of two objects. यही हमारा टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वेयर वी आर यूजिंग नाउ दीज ऑपरेटर्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स को कैसे ऐड, कैसे सब्ट्रैक्ट, कैसे मल्टीप्लाई, कैसे डिवाइड करेंगे। दो ऑब्जेक्ट्स में तो अब मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो ऑब्जेक्ट क्लास के सारे वेरिएबल्स को एक्सेस करता है। अगर उसमें 3 वेरिएबल्स हैं ABC, ठीक है, उन ABC वेरिएबल्स में जो वैल्यूज़ हैं उनको अगर मुझे ऐड करना है या किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को ऐड करना है, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट किए S1 और S2, और S1 और S2 से दो मेमोरी एलोकेशन अलग अलग मिल जाएंगी एंड आई नीड टू ऐड द वैल्यूज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू ऐड करना मतलब हम मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यूज को ऐड कर रहे हो, राइट? कि आपने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और वो जो भी मेंबर वेरिएबल्स है ए बी, उन दो वैल्यूज को ऐड कर रहा है। तो S1 का ए बी S2 के ए बी के साथ कैसे ऐड होगा, ठीक है ना? अगर दो प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स हैं ए और बी, ठीक है, और आपने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए S1 और S2, तो S1 के लिए वी हैव ए एंड बी मेमोरी एलोकेशन, ओके, एंड S2 के लिए भी मेरे पास मेमोरी एलोकेशन है ए एंड बी, ठीक है। अब ए में सपोज 10 स्टोर है, इसके S1 ने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो 20 स्टोर है, और इसके S2 में 5 स्टोर है, और इसके बी में क्या स्टोर है, लेट्स से 10। तो मैं अब इन दोनों के मेंबर वेरिएबल्स को ऐड करना चाहती हूँ, तो हाउ विल आई एक्सेस मेंबर वेरिएबल? थ्रू ऑब्जेक्ट। तो हाउ ऑब्जेक्ट विल गेट एडेड?
तो जब मैं इसको ऐड करूँगी तो a की वैल्यू ऑफ s1 शुड एडेड विद द a की वैल्यू ऑफ s2 एंड b की वैल्यू ऑफ s1 शुड बी एडेड विद द वैल्यू ऑफ b ऑफ s2। ठीक है, तो प्लस जो यहाँ पर ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, एडिंग दी मेंबर वेरिएबल्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट डिफरेंट था, वहाँ पे क्या था, फंक्शन का नाम सेम है एंड यू आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। कॉन्सेप्ट यहाँ भी वही है, प्लस यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है बट वी आर डूइंग प्लस ऑपरेटर और यूजिंग प्लस ऑपरेटर फॉर डिफरेंट पर्पस। जैसे फर्स्ट पर्पस में प्लस ऑपरेटर इज यूज टू ऐड टू इंटीजर, सेकेंड पर्पस में इट इज एडिंग टू decimal values, थर्ड पर्पस में इट इज एडिंग और कॉन्कैटिंग टू स्ट्रिंग्स, और थर्ड में और सॉरी फोर्थ में वी आर एडिंग द वैल्यूज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट में प्लस ऑपरेटर को कैसे यूज करना है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दैट हाउ द बेसिक operations can be used for the objects, कि उन पे हम बेसिक ऑपरेशन कैसे करें, कैसे हम दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट किसको एक्सेस कर रहा है, मेंबर वेरिएबल्स को, तो एक ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल्स के एलोकेशन ये और दूसरे के ये, तो आपस में ये कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड होंगे, वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो उसमें हम ये तीनों चीज़ें नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट पे प्लस ऑपरेटर कैसे यूज़ करें। क्लियर, how we are using plus operator in for the operation of object। ऑब्जेक्ट पे कोई ऑपरेशन करना है मैथमेटिकल, तो हम उसको कैसे करेंगे, तो दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जो यहाँ कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करने का, दैट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट एज कम्पेयर टू योर फंक्शन ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यहाँ पे हमें एक मेंबर फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट वन स्पेशल मेंबर फंक्शन जिसका नाम होगा ऑपरेटर। ठीक है, उसमें कीवर्ड यूज होगा ऑपरेटर, और उसका नाम क्या होगा, जो सिंबल जो आप ऑपरेशन करना चाहते हो। अगर आप प्लस करना चाहते हो तो प्लस सिंबल इज द नेम और द कॉल, नेम ऑफ जिससे आप फंक्शन कॉल करोगे। जैसे फंक्शन का नाम देते हैं ना, तो उससे हम कॉल करते हैं, या डॉट ऑपरेटर से उसको एक्सेस करते हैं। यहाँ पर भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जो ऑपरेटर है दैट इज द नेम ऑफ योर फंक्शन, बट इन दिस यू हैव टू गिव कीवर्ड ऑपरेटर ऑल्सो। ठीक है, जैसे फ्रेंड फंक्शन में आप फ्रेंड यूज कर रहे थे, ऐसे ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जब आप मेंबर फंक्शन क्रिएट करोगे for operators, then you have to use keyword operator। I'll show you the syntax, this part is clear। सो दीज आर द फीचर्स जो मैंने लिखे हुए हैं, ये क्योंकि 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, write the features of operator overloading, या what is operator overloading, write its syntax and write features। तो यही आता है, प्रोग्राम इस पे नहीं आता, बट आई विल शो यू 4 प्रोग्राम्स कि कैसे आपको थियोरी लिखनी है, अदरवाइज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द थियोरी। आपको जो 8 पॉइंट्स लिखने हैं, दीज आर 8 पॉइंट्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दैट 8 पॉइंट्स यू नीड टू राइट इन 4 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है काफ़ी बार, 4 मार्क्स में ही आता है हमेशा ये क्वेश्चन, व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग और राइट द 8 फीचर्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो दैट इज, यहाँ से आप शुरू कर सकते हो कि like function overloading we can perform operator overloading, that is existing operators can be overloading। You can give this example as one point। Now
I'll explain all the points. Programs abhi not possible, but in next class we will do program part of this operator overloading. But today you should just listen my terms कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. इफ़ यू आर लिटिल बिट क्लियर विद दैट तो प्रोग्राम्स फटाफट समझ आ जाएंगे, और प्रोग्राम में आपको यूज़ करना आ गया तो आपको ये थ्योरी याद रहेगी, आपको भूलेगी नहीं ये थ्योरी. ठीक है. तो ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग कैन नॉट अल्टर द बेसिक टेम्पलेट्स ऑफ द ऑपरेटर, दैट इज बेसिक मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर कैन नॉट बी चेंज. वो तो हमने देख ही लिया कि जो हमने जो एग्जाम्पल लिया था, that the basic meaning of operator will not change whether you are adding two integers, two decimal, two strings or two objects. The concept of plus will remain plus. It is basically used to add numbers or to add two values. Okay, next point जो है that is the operator that are predefined in C++ cannot be overloaded, but the new operators like this cannot means can be overloaded. Sorry, means जो पुराने और जो predefined है like plus, minus, multiplication, division, increment operator, plus plus, decrement operator, minus minus, changing the sign, only minus, unary operator and binary operator, वो हम overload कर सकते हैं. यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर. तो जो न्यू ऑपरेटर्स है सी प्लस प्लस में जिनका स्पेशल मीनिंग है, जैसे ये डबल डॉट्स, इसका क्या मतलब है? दिस इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. दिस वी कैन नॉट ओवरलोड, वी कैन नॉट यूज ओवरलोड. दिस साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर किस लिए यूज होता था? दैट इज यूज फॉर size of operator to tell the size of your data. Okay, और this question mark ये complete नहीं है, question mark और colon, there is a mistake in this, question mark और colon यहाँ पे हम लगाते थे ना, ये किस लिए था? कंडीशनल ऑपरेटर, राइट. कंडीशनल ऑपरेटर था ना, रिप्लेसमेंट ऑफ इफ एल्स ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, और दिस इज पॉइंटर. ठीक है. Asterisk is not specially used for multiplication. This is pointer operator. So they have special meanings. So this we cannot use as for overloading purpose. हम object का काम इस पे नहीं कर सकते. जो हमारे pre डिफाइंड ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब हम ओवरलोड कर सकते हैं, और कुछ लॉजिकल ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं. बट ये जो स्पेशल मीनिंग वाले ऑपरेटर्स हैं सी प्लस प्लस में, जिनका एक अलग सा मीनिंग है, स्पेशल मीनिंग है, उनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, सी दिस सिंटेक्स. मैंने आपको सिंटेक्स थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था. स्पेशल ऑपरेटर फंक्शन इज यूज टू ओवरलोड एनी ऑपरेटर. तो मुझे एज ए जैसे मेंबर फंक्शन क्लास में लिखते हैं ना, ऐसे ही मुझे ऑपरेटर फंक्शन लिखना पड़ेगा, जिसमें दिस इज द रिटर्न टाइप. नॉर्मल जैसे मेंबर फंक्शन का वॉइड होता है, इसका भी हो सकता है वॉइड. ठीक है, ऐसे आपको वॉइड यहाँ पर लिखना है. ऑपरेटर, ये पूरा कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा दैट दिस इज ऑपरेटर. वॉइड के बाद यू हैव टू यूज दिस कीवर्ड ऑपरेटर, void operator. Now this op is your mathematical operator, or you can say the name of your function. अगर आपको प्लस को ऑपरेट ओवरलोड करना है तो you will write here plus. ठीक है. और यहाँ पे तो पैरामीटर्स कैसे पास करने हैं? तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो अभी मैं बता रही हूँ आपको, जो भी पैरामीटर इस ऑपरेटर फंक्शन में पास होंगे, दैट शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, जस्ट लाइक योर फ्रेंड फंक्शन. ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. या तो पैरामीटर पास ही नहीं होंगे, अगर पास होंगे तो वो कैसे होंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, नॉट द नॉर्मल फंक्शन लाइक इंट आई, फ्लोट के, नॉट लाइक दैट. इट शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कैसे होता है? यहाँ पे आपको क्लास का नाम देना पड़ेगा, जैसे ट्राई, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा टी.
इस तरह से ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास यू हैव टू पास इन केस ऑफ इफ यू in case if you want to pass any argument in operator function। तो वो हम देखेंगे आगे कि कहाँ कहाँ हम आर्ग्यूमेंट जो है पास कर सकते हैं। is it clear with the syntax? तो कभी आता है ना what is operator function and write the features। तो operator function is this, here the return type, then you have to use keyword operator, and op is, you can say, I'm just using the very simple, using simple language, that this is the name of your function। कि अगर आपको प्लस को ओवरलोड करना है तो यू विल राइट प्लस एंड आर्ग्यूमेंट द नंबर ऑफ पैरामीटर्स विच यू नीड टू पास, but this parameter should be the object of the class। It is not a simple data type or any built-in data type or not any user derived data type। It should be user defined data type और the class जिस class में आप ये लिख रहे हो operator function, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट आपको पास करना पड़ेगा, जस्ट लाइक इन मेंबर सॉरी फ्रेंड फंक्शन। क्लियर? तो ये आप देख लो, रिटर्न टाइप क्या इज द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द क्लास, देन ऑपरेटर इज द स्पेशल मेंबर फंक्शन नेम, तो कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, ऑफ इज द ऑपरेटर विच यू वांट टू ओवरलोड, एंड आर्ग्यूमेंट लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ पैरामीटर पास विद इन द आर्ग्यूमेंट। क्लियर? अभी नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है? ओके अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑपरेटर जो हम ओवरलोड करते हैं वो दो तरह के होते हैं, यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, नाउ यू आर फैमिलियर विद दिस वर्ड यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? जिसमें एक ऑपरेंड होता है, जैसे प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए, तो इंक्रीमेंटिंग दी in this we are using only one data, so that is called unary operator where you have one operand। binary operator क्या होते हैं? जिसमें आप दो ऑपरेंड यूज कर सकते हो, जैसे हमारे नॉर्मल मैथमेटिकल फंक्शन a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई विद b, a डिवाइडेड बाय t, a मॉड b। तो ये हमारे सब क्या है? बाइनरी ऑपरेटर, जिसमें हम दो डेटा यूज करते हैं। अंडरस्टूड दिस पार्ट? तो यूनरी ऑपरेटर वह हमने पढ़ा था ना 11th में, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में कौन सा एग्जाम्पल था? कंडीशनल ऑपरेटर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टर्नरी ऑपरेटर वेयर वी हैव थ्री ऑपरेंड। फर्स्ट इज द कंडीशन, second is your true part and third is your false part। ओके बट हम इसको ओवरलोड कर ही नहीं सकते, ये हमने अपनी लास्ट स्लाइड में देखा। दिस इज स्पेशल ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। क्लियर? तो हम सिर्फ यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं। क्लियर? अंडरस्टूड दिस पार्ट? यहाँ तक क्लियर है?